Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at your home in this tough time and are doing really well. So in today's video, we are going to discuss about class 10th Science NCERT chapter number 10, that is light, reflection and refraction. For your kind information, I would like to tell you that we have uploaded two parts of the same chapter, part 1 and part 2. In that we have discussed basic concept of light and reflection of light by the plane mirror also and by the general surface also. And we have also discussed about the laws of reflection. So if you have not watched those videos, then please go to our channel, watch those videos. Both the videos will be available in the playlist, because if you are not watching those videos, because basics are discussed in those videos, so you must understand the basic first. After that you can understand the concept of the chapter from in between. So I would like to request you, please watch part 1 and part 2 of the same chapter. After watching those videos, please watch this part. This is going to be the third part of the chapter, right? So without any further delay, let's get started today's concept. In today's video we need to discuss about types of reflection. Okay, so reflection is very clear to you that we have discussed in the previous video, and in this video we need to discuss about the types of reflection. So reflection is what? Reflection is the process of bouncing back of light after striking a smooth surface. Okay, अगर कोई लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वो उनको रिफ्लेक्ट कर देता है. तो इस प्रोसेस को जो उस लाइट रेज को क्या कर देता है, उसे मीडियम में वापस सेंड कर देता है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो फिर आप जाके देखिए, पार्ट 1 में क्लियर हो जाएगा. बहुत सिंपल है. ठीक है, किसी भी अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी लाइट रेस को किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, और अगर वो सरफेस उस लाइट रेस को उसी मीडियम में या उसी मीडियम में वापस क्या कर रहा है, सेंड कर देता है, तो ये जो प्रोसेस होती है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट. बट राइट नाउ आवर एजेंडा इज to discuss about the types of reflection. So please stay focused on that concept. Don't just confused with the definition of the reflection. आप definition में confuse मत होइए. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए पार्ट 1 में अवेलेबल होगी definition, या फिर आप कहीं से भी बहुत पार्ट 1 में क्लियर हो जाएगा आपको. अगर आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा. चलिए अभी करते हैं बात टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, right? So the first reflection that we are going to discuss is regular reflection. What is regular reflection? Must understand, whenever we are incidenting a parallel rays of light on a reflecting surface, and if we are getting the parallel reflected rays, then this kind of reflection is called as regular reflection. Okay, so we have written the definition for you on the board. Whenever parallel rays are incident on a reflecting surface, and if after reflection the rays are also parallel, then this kind of reflection is called as, you can say, regular reflection. Okay, अभी हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या कर रहे हैं, पैरेलल रेज को क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं. ये रेज हैं, ये आपकी डायरेक्शन शो करते हैं एरोस को. ठीक है, और ये हमारे जो रेड वाली रेज हैं, दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज. जो रेड एरो जिन पर लगा हुआ है वो रिफ्लेक्टेड रेज है. अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने पैरेलल रेज को क्या करा है, इंसिडेंट किया है. ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट. तो जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो भी आपको दिखाई पड़ रही होंगी, कैसी हैं, पैरेलल हैं. यहाँ पे देखो आप, दिखाई पड़ रही है ना पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज. इंसिडेंट रेज भी पैरेलल हैं और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हैं. अगर दोनों इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज अगर पैरेलल होती हैं तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट. क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं. बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इतना लेंदी टॉपिक नहीं है, इसलिए बार बार रिकॉल नहीं करेंगे. एक बार लास्ट टाइम रिकॉल कर रहा हूँ मैं. अगर हम किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पैरेलल सेट ऑफ इंसिडेंट रेज, पैरेलल सेट ऑफ रेज को इंसिडेंट कर रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल रेज हैं, इनको हमने इंसिडेंट किया है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी अगर ये रेज पैरेलल ही हैं तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन. एंड regular reflection occurs only at the smooth surfaces or the plane surfaces.
कब होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन? ओनली एट द प्लेन सर्फेसेस, यू आर एबल टू जस्ट लुक एट दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली एट द स्मूथ सर्फेसेस। जो स्मूथ सर्फेस होते हैं जस्ट लाइक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आपका कैसा होता है? स्मूथ होता है, तो उस पर जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, राइट। जो भी आपकी प्लेन सरफेस होंगी, जैसे फ्लोर है, फ्लोर पे अगर वाटर पड़ा हुआ है तो वहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्शन होगा वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर कोई भी स्मूथ सरफेस है तो रेगुलर होगा, अगर स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, तो फिर दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन होगा, वो अभी डिस्कस करेंगे हम, राइट। सो इसको रिकॉल एक बार क्या कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए सारा कुछ जो भी है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है वैसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। So students, I think you have taken the screenshot of the previous concept, that was regular reflection. Now we need to discuss another kind of reflection, that is irregular reflection. Either it is also called as diffused reflection, okay. It is also named as diffused reflection. So whenever the word is coming diffused reflection in any of the book, any of the side book you are studying, SC Verma you are studying, in any of the book you are studying, then please don't get confused what is diffused and what is irregular. Both are same, right? So in this what happens whenever we are whenever we are incidenting parallel rays of light on a reflecting surface, and if after reflection the rays we are getting that are not parallel, then this kind of reflection is called as irregular reflection, okay. Is it clear? In the previous one, regular reflection, what was there? Incident rays and reflected rays both were parallel, but in this concept whenever we are incidenting the parallel set of rays and on a irregular surface, and if after reflection we are getting non-parallel set of reflected rays, then this kind of reflection is called as irregular reflection, either it is called as diffused reflection. क्लियर हो गया क्या होता है? अगर हम किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पैरेलल रेज को इंसिडेंट कर रहे हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? नॉन पैरेलल रेज मिल रही हैं आपको, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बट अभी इसमें आपको एक चीज़ विजिबल होगी कि यहाँ पे सरफेस कैसा है? रफ है। इसमें सरफेस कैसा है? रफ है। और जो इससे पहले वाला सरफेस रिफ्लेक्शन प्रोसेस था रेगुलर में, उसमें सरफेस कैसा था? स्मूथ था। तो अगर आपका सरफेस रफ है तो आपको डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका सरफेस स्मूथ है जस्ट लाइक प्लेन मिरर, तो आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है? रेगुलर कब होता है? जब सरफेस स्मूथ होगा। अगर सरफेस स्मूथ नहीं है उस केस में इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ क्या होता है। अगर आप किसी भी सरफेस पे पैरेलल सेट ऑफ रेज को इंसिडेंट कर रहे हो और आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको जो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है वो पैरेलल नहीं है, वो आपकी नॉन पैरेलल है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कब होता है? जब आपका सरफेस कैसा होगा? रफ होगा। सरफेस स्मूथ नहीं होगा, कैसा होगा? रफ होगा। अगर सरफेस स्मूथ है तो फिर आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, राइट। सो बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक नहीं है, इसलिए बहुत लंबी नहीं कर रहा हूँ। जल्दी इनको रीड कर लीजिए, केवल डेफिनेशंस आपको कभी देखने को मिल सकती हैं। बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें ऐसा कुछ, इसलिए आप इनको जस्ट सिंपली एक बार रिकॉल कर लेंगे बस, इसलिए क्योंकि अगर टॉपिक स्किप होता तो फिर आपको मज़ा नहीं आता पढ़ने में। बहुत सारी बुक्स में गिवन होगा, फिर अगर आपको पता नहीं होगा रेगुलर इरेगुलर क्या होता है तो फिर आपको डाउट होगा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने रिकॉल किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है, right? So please make a note of it. Either you can take the screenshot, whatever the way suits you, you can use that one. जो भी आपको अच्छा लगता है, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करना अच्छा लगता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइदर आप वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। सो okay students, I think you have taken the screenshot of the previous concept, that was irregular reflection. Now we need to discuss the concept of object. However, the object in the optics has a special meaning. Object is very common, you have studied many times in motion, but in the optics is the science of study
the phenomena of related to the light. Okay, it is the way of studying the phenomena related to the light. It is the branch of science in which we study the phenomena, all the phenomena that are related to the light. ऑप्टिक्स क्या होता है? साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें लाइट से रिलेटेड जितनी भी फिनोमिना होती है उनको हम स्टडी करते हैं. तो ऑप्टिक्स में इसकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है. क्या होती है देख लेते हैं एक बार. ओके, in optics it has a special meaning, otherwise object has a general meaning, like a bus can be taken as object, a chair can be taken as object, but in the optics it has a different meaning. So that's why we need to discuss the concept of object with respect to optics. Okay, so anything which gives out light either of its own or reflected by it is called as object. What it means? It means कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, या तो वो उसकी ओन लाइट हो जो लाइट को इमिट करता है, या लाइट जो लाइट को गिव ऑफ करता है. तो अगर या तो उसकी ओन लाइट हो सकती है या वो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे कैंडल, कैंडल क्या कर रहा है? लाइट को इमिट कर रहा है. ओके, कैंडल क्या कर रहा है? लाइट को इमिट कर रहा है. तो कैंडल की खुद की लाइट है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया. और ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा. अब टेबल, टेबल कैसा ऑब्जेक्ट है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है, बट टेबल की खुद की लाइट तो होती नहीं है, तो वो क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. मैंने आपको लिखा भी है यहाँ पे, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट आइदर ऑफ इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट. कोई भी चीज़ जो लाइट को इमिट करता है, चाहे वो उसकी खुद की लाइट हो या फिर किसी दूसरी चीज़ की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल्स में कौन कौन से होंगे? टेबल हो गया, कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, ट्री हो गया. ऑल दीज थिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ object. Why? Because either they will give you the, they will just emit the light either of its own, या तो वो उनकी खुद की लाइट होगी या वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे. कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट को रिफ्लेक्ट, जो लाइट को इमिट करती है, चाहे वो खुद की लाइट हो या वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हो किसी भी चीज़ की, किसी भी ल्यूमिनस सोर्स से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. क्लियर हो गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप यूज़ करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स को बार बार ऑप्टिक्स में, इसलिए मैंने आपको बता दिया. एंड इन द ऑप्टिक्स वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. फर्स्ट वन, दोज हु आर स्मॉल इन साइज, दे आर कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्या बोलते हैं उनको? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. जस्ट लाइक स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. एंड इफ वी आर डीलिंग विद द लार्ज साइज ऑब्जेक्ट देन दे आर कॉल्ड एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स. उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. पॉइंट जो छोटे वाले होते हैं उनको पॉइंट साइज, उनको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. एंड व्हेनेवर वी आर ड्राइंग द रे डायग्राम्स एंड ऑल दिस प्रोसेस, व्हेनेवर वी आर डूइंग, in that case we will be at some cases we will be discussing about the point object, at some cases we will be discussing about the extended ones. So just connected with us. Okay, please stay with us. We will be talking about all those things. What are the point object, how we can draw a ray diagram by using the point object. That is very similar, that is very easy. Don't get confused among this. I have told you what is object and what are different types of object that we need to study in the ऑप्टिक्स. कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं? एक सिंपल मीनिंग था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपका सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. ओके, नेक्स्ट इज इमेज. दिस इज द वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज you will use 1000 times this word in your chapter. Image, object, many times you will use. So you must be having clear idea about the image. बहुत सारे लोग आपको image पढ़ाते नहीं है, या आपको बुक्स में गिवन होता है, बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं कि चलो इमेज की क्या ही होगा डेफिनेशन, तो पूछते हैं, देखते हैं क्या है. इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस एंड इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर. कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उससे आने वाली लाइट मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस क्रिएट होगा, जिस ऑप्टिकल अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं. क्लियर? क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑप्टिकल अपीयरेंस जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली लाइट मिरर अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मिरर क्या करेगा? उसकी एक इमेज फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे. जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी जो लाइट है, आपकी बॉडी जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, जो फिर मिरर क्या करेगा? उस लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो ऑप्टिकल अपीयरेंस क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे. क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं. इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर. कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है,
इससे क्या रेस, ये क्या कर रहा होगा, लाइट रेस को इमिट कर रहा होगा। मैंने आपको बताया कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट रेस को इमिट करता ही करता है, चाहे वो उसकी खुद की लाइट हो या वो किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ठीक है। जैसे पेन है तो ये क्या करेगा, लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करेगा, नॉन ल्यूमिनस है ये, इसकी खुद की लाइट तो होगी नहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो भी लाइट रेज इससे जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट होंगी इससे, वो मिरर, जैसे सामने मिरर रखा हुआ है, अगर ये लाइट रेज यहाँ से ऑब्जेक्ट से जाने वाले लाइट रेज मिरर दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगा तो मिरर क्या करेगा, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस क्रिएट करेगा, जिस ऑप्टिकल अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं तो आपकी बॉडी से जो लाइट इमिट हो रही है वो कहाँ जा रही है, पहले मिरर में जा रही है, फिर मिरर उनको दोबारा से रिफ्लेक्ट कर रहा है और एक ऑप्टिकल अपीयरेंस क्रिएट कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज, ओके। So please take the screenshot of it. Either you can pause the video to make a note of it, right? Okay, so students, I think you have taken the screenshot of the previous concept. Now we need to deal some very important concept, that is the concept of real images and the concept of virtual images. Till now we have discussed the concept of regular reflection, irregular reflection, concept of object, concept of image. Those are not very important concept of object, concept of image. You must just know about it. You must be knowing about it because you are studying all the things related to the optics, because you are using thousands times the word object and image, object and image. So if you don't know the meaning of those things, then all the things are worthless, no matter how much knowledge you are having. बट अगर आपको पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, इमेज का मीनिंग क्या है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, इसलिए मैंने डिस्कस किया। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्सेप्ट, मैं आपको बता दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। सो रियल इमेजेस आर व्हाट, image I have told you, it is an optical appearance which is formed by the mirror, okay, or it is also formed by the lenses. Lenses भी image को form करते हैं और mirror भी form करते हैं, but right now we are dealing only with the reflection, so that's why I am telling you all the things with respect to mirror and reflecting surfaces, not with the lens. Lens हम कब पढ़ेंगे, जब refraction की बात करेंगे तब हम lens की बात करेंगे, right? So right now we need to discuss only about the mirrors, not about the lenses, because mirror reflects the light and reflection is caused due to mirror only. Reflection कैसे होता है, mirror से होता है, okay. So real images are what? Real images are those which can be taken on the screen, or we can say the images that can be taken on the screen are called as real images. ऐसी इमेजेस जो जिनको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेजेस बोलते हैं। आप सिनेमा हॉल्स में जाते हैं या प्रोजेक्टर्स पे जाते हैं तो प्रोजेक्टर्स में जो इमेज होती है उसको स्क्रीन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो उन इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेजेस बोलते हैं। आपने क्लासरूम में देखा होगा जब प्रोजेक्टर चलता है तो प्रोजेक्टर से इमेज आती है, प्रोजेक्ट होती है, उस इमेज को आप अगर सामने स्क्रीन रख रहे हो तो वो इमेज जो है उस स्क्रीन पे आ जाएगी, दैट मीन्स दैट इज़ अ रियल इमेज, दैट मीन्स वी कैन टेक दैट इमेज ऑन द स्क्रीन। तो ऐसी इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं उन इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेजेस बोलते हैं। राइट नाउ वी हैव गिवन द इमेजेस ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इन द सिनेमा हॉल। जो भी आपकी इमेजेस होती हैं एक्टर्स की या एक्ट्रेसेस की, वो भी प्रोजेक्ट होती हैं प्रोजेक्टर्स के थ्रू ही, तो वो कैसी इमेजेस होती हैं, वो आपकी सारी रियल इमेजेस होती हैं। एंड ऑल द इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोजेक्शन ऑफ एनीथिंग। आपके क्लासरूम में जो इमेजेस बनती हैं प्रोजेक्टर से, अगर प्रोजेक्टर ऑन है, प्रोजेक्टर से कोई चीज़ आपको विजुलाइज कराई जा रही है, तो जो इमेजेस फॉर्म हो रही हैं बोर्ड पे या स्क्रीन पे, वो सारी रियल इमेजेस होंगी, राइट, क्योंकि आप उसको स्क्रीन पे ले सकते हो, वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल होती है, ओके। सो ऐसी इमेजेस जिनको आप स्क्रीन पे ले सकते हो उनको हम बोलते हैं रियल इमेजेस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इमेज। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द वर्चुअल इमेजेस ऑल्सो। Virtual are just opposite to the real. Real means something exists in reality. Virtual means which is not exist. It is the imaginary concept. Virtual means false. जो exactly तो exist नहीं करता है, बस false हम उसको assume करते हैं ऐसा. Okay. So virtual images are those which cannot be taken on the screen, or we can say the images that cannot be taken on the screen are called as virtual images. तो ऐसी इमेजेस जो स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं हम जिनको, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। जैसे आप फेस मिरर के सामने खड़े हो, जो आपका मिरर होता है ड्रेसिंग टेबल वाला, उसके सामने आप खड़े हो तो आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, उसको आप स्क्रीन पे टेक आउट नहीं कर सकते, इसलिए वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल। तो ऐसी जितनी भी इमेजेस होंगी जो आपकी जिनको स्क्रीन पे कॉपी नहीं कर सकते हम, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस।
क्लियर है कॉन्सेप्ट। रियल इमेजेस क्या होती हैं, जिनको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया इमेजेस ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इन द सिनेमा हॉल। जो भी प्रोजेक्टर से इमेज बनती हैं वो सारी रियल इमेज होती हैं। आपकी क्लासरूम में भी प्रोजेक्टर चलता होगा, जब लैब वगैरह में भी चलता होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम जो भी इमेजेस आती हैं उनको हम स्क्रीन पे कॉपी कर सकते हैं, तो वो इमेजेस रियल इमेजेस होती हैं। और जिनको स्क्रीन पे कॉपी नहीं कर सकते वो होती हैं आपकी वर्चुअल इमेजेस। एग्जाम्पल कौन सा दिया है मैंने, द इमेज ऑफ अ पर्सन फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। जो ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है, उसके अंदर जो भी इमेजेस बनेंगी, आप जैसे आप सामने खड़े हो, आप इमेज बन रही, बीच में अगर आप स्क्रीन रखोगे तो आपको विजिबल नहीं होगी। ओके, सो वी कैन नॉट टेक दैट इमेज ऑन द स्क्रीन, सो दैट्स व्हाई दैट इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल. So this is all about your concept of real image and virtual image. Please pause the video to make a note of it. Either take the screenshot to write down in a copy. Whichever the method suits you, you can use that one. जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको नोट डाउन करना, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना अच्छा लगता है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करना अच्छा लगता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो भी आपकी चॉइस है वो कर सकते हैं। So students, I think you have done the previous concept, that was concept of real images and concept of virtual images. Now we need to discuss a new concept that is very important, formation of image by plane mirror. And multiple times we are using the word image and object. Then you must understand how this image is formed. Okay, because I have told you the object are of two types. One are those who are having very small size, they are called as point objects, and those who are having large size, they are called as extended object. Right now we are taking the example of only point object, that how the image of a point object is formed by the plane mirror. अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज है। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं ऑप्टिक्स में, दो तरह के ऑब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। एक तो आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक आप पढ़ेंगे पॉइंट साइज। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये पॉइंट से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। राइट नाउ वी हैव टेकन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ओ। ऑब्जेक्ट को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज अ प्लेन मिरर। you are able to see here m dash. This is a plane mirror. Plane mirror is having a smooth surface and one side polished. So these slanted lines are representing the polished surface. जो ये लाइन्स हैं ऐसी क्रॉस्ड लाइन है, स्लैंटेड लाइन्स हैं, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, कैसे इमेज फॉर्म होती है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे, जितने भी रे डायग्राम्स आप बनाओगे, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट, बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है इन केस, तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ से मैं जब भी आप कॉमेंट रीड करूँगा तो आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा एज सुन एज पॉसिबल। देखते हैं यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट आइदर ऑफ इट्स ओन आइदर रिफ्लेक्टेड बाय इट। कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट इमिट करती है, चाहे वो उसकी खुद की लाइट हो या वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो किसी भी दूसरे सोर्स की लाइट। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये सारी डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, लाइट रेस को इमिट कर रहा होगा। बट फॉर इमेज फॉर्मेशन वी नीड एटलीस्ट 2 rays. How many rays we need? We need at least minimum 2 rays. So that's why we have taken only 2 rays. It is not just like that. It is only having 2 rays. ऐसा नहीं कि हमने 2 ही ली हैं तो 2 ही रेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये सारी डायरेक्शन में लाइट रेज को इमिट कर रहा होगा। बट फॉर आवर कन्वीनियंट वी हैव टेकन ओनली 2 rays. First ray is OA, second ray is OB. Okay. Now whenever the OA is incident, whenever this first ray is incident on the plane mirror, आपको पता है ये फर्स्ट रे जो है OA, ये इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे A पॉइंट पे। अब आपको पता है क्योंकि जो यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, ये नॉर्मल है N1, आप इसे लिख सकते हो। इट इज़ योर फर्स्ट नॉर्मल N1 एंड इट इज़ योर सेकेंड नॉर्मल N2, एंड एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन मिरर। यहाँ पे ये जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ यू हैव नॉट नोन अबाउट दीज टर्म्स देन प्लीज गो टू फर्स्ट वीडियो। इन फर्स्ट और सेकंड वीडियो आई हैव टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग। दैट्स वाई मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि पहले दोनों वीडियोस देखिए, उसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल आई है,
और I है इंसिडेंस एंगल, और ये रिप्रेजेंट ये सेम ये एंगल R1 है। तो ये क्या करेगा, जितना इंसिडेंस एंगल होता है उतने ही एंगल पे क्या करता है, जो मिरर होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये जैसे लेट्स सपोज I1 पे है, तो ये सिंपल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ AX। कौन सी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई है, AX डायरेक्शन में, राइट। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हो गई। सिमिलरली ये वाली रे आ रही है दूसरी OB, ये कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, B पॉइंट पे। अब B पॉइंट पे क्या होगा, सेम वही जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है हमने, जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको ड्रॉ कर रहा है, कोई इनका बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये I2 एंगल फॉर्म कर रहा है, ये R2, ये दो यहाँ पे I1 I2 इसलिए मैंने मेंशन किया क्योंकि दो रेज हैं। पहली वाली रेज के लिए 1 सफिक्स यूज़ किया है, सेकेंड वाले के लिए हमने 2 यूज़ किया है, ओके। तो यहाँ पे ये रेज जैसे ही इंसिडेंट होगी OB, तो ये क्या करेगा, मिरर क्या करेगा, इस रे को रिफ्लेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये BY डायरेक्शन में इसको रिफ्लेक्ट करेगा। अब आप देख रहे हो दोनों रेज अगर हम पीछे इनको फर्दर प्रोसीड करेंगे, फर्दर प्रोड्यूस करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, ये अगर आप सामने के डायरेक्शन में इनको आप देखोगे तो कभी नहीं मिलेंगी। दे आर डाइवर्जिंग रेज। कैसी हैं वो, डाइवर्ज हो रही हैं। आप देख रहे हो यहाँ से ये डाइवर्ज हो रही हैं, इस तरह से ये डाइवर्ज हो रही हैं। तो डाइवर्जिंग रेज हैं AX एंड BX, दे विल नेवर मीट इन रियलिटी। अगर आप चेक करोगे इनको कभी भी नहीं मिलेंगी। सो व्हाट वी विल डू, वी कैन सिंपली प्रोड्यूस दीज रेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इनको हम मिरर के पीछे साइड में क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। देखो फिर से हमने डॉटेड लाइंस को ड्रॉ किया है, ये डॉटेड लाइंस है, ठीक है। ये हमने डैश लाइन से, डॉटेड लाइन से इनको क्या कर रखा है, ये फर्दर इन रेज को मिरर के बैक साइड में हमने इनको प्रोड्यूस कर रखा है, और बैक साइड में एक पॉइंट पे आके ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे। जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी उसी पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। दैट मीन्स इन दिस प्लेन मिरर व्हेनेवर द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद द इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, द रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज नेवर मीट इन रियलिटी। तो रियलिटी में कहीं मीट नहीं कर रही हैं, तो फिर रियलिटी में जब मीट नहीं कर रही तो रियल इमेज का केस नहीं बनेगा, रियल इमेज नहीं बनेगी। ये दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वर्चुअली हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि पीछे मिल रही होंगी, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मिरर के पीछे कहीं मिल रही होंगी। तो ये कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। क्लियर है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। अभी हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया एक अभी प्लेन मिरर ले रखा है हमने, प्लेन मिरर है हमारा M डैश, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने जो ले रखा है वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया जो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। वो भी आप आगे पढ़ोगे, उनको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अभी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हमने यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रखा है, दैट मीन्स बहुत छोटा होगा ये ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर O। जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, लाइट रेज को इमिट करता है सारे डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज़ जो लाइट रेज को इमिट कर रहा है, चाहे वो खुद की लाइट हो, इस बल्ब वगैरह में क्या होता है खुद की लाइट होती है, पर अगर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। लेट्स सपोज टेबल क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो लाइट को क्या करेगा, सारे डायरेक्शन में इमिट कर रहा होगा। बट हमें इमेज फॉर्मेशन दिखाना है तो मिनिमम 2 रेज चाहिए। अगर आपको इमेज का फॉर्मेशन दिखाना है तो मिनिमम आपको 2 रेज चाहिए। दैट्स वाई हमने यहाँ पे 2 रेज ले रखी है। फर्स्ट रे ले रखी है हमने OA, ये रे O से स्टार्ट हो रही है, A पे आके इंसिडेंट हो रही है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ AX। यहाँ से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये यहाँ से सिंपल AX डायरेक्शन में चली जाएगी। मीन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे इसको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये 45 पे इंसिडेंट हो रही है तो ये 45 पे रिफ्लेक्ट करेगी, अगर ये 30 पे इंसिडेंट हो रहा है तो ये 30 पे रिफ्लेक्ट करेगा। ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो हमारी रे है, फर्स्ट रे AX डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी वाली जो रे आ रही है वो OB है। OB यहाँ से दोबारा से देखो, ये भी क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आपका BY डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब दोनों रेज को अगर आप देखो, ये कैसी रेज है, AX और BY जो है वो डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग रेज कभी भी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से इन रियलिटी। अगर आप इनको फर्दर आप प्रोड्यूस करोगे आगे, ये जाके कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये आई है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये रियलिटी में कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। तो हम क्या करते हैं,
हम ये अज्यूम करते हैं कि मिरर के पीछे बैक साइड में कहीं पे भी एक ये मिल सकती है, हो सकता है ऐसा हो कि ये मिले बैक साइड में, इसलिए हमने इनको बैक साइड में फर्दर प्रोड्यूस किया है। तो ये बैक साइड में देखो एक पॉइंट पे आपको मीट करते हुए दिखाई दे रही है, तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगी उस पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं वहाँ पे इमेज बनता है, राइट, क्या बनती है, इमेज बनती है। क्लियर है ये? सो ओके। और एक ऐसी इमेज है रियल, क्योंकि रियल में हमारे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, वो मीट नहीं कर रही, तो रियल इमेज नहीं होगी। ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। कैसी है, वर्चुअल, बिकॉज इट इज ओनली एजम्पशन, हम इसको अज्यूम कर रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं बन रहा है। ये कैसी है, वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल। आई थिंक यू हैव गेट दिस कॉन्सेप्ट। ज़्यादा थ्योरी लिखने की नीड नहीं है, थ्योरी पोर्शन में कुछ नहीं जाना, बस आपको ये समझ में आना चाहिए इमेज बनती कैसे है, कैसे इमेज से कॉन्सेप्ट होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। प्लीज पॉज द वीडियो टू मेक अ नोट ऑफ इट, okay, or either you can take the screenshot, that will be helpful for you. So students, this is all about your video. If you like this video, then please hit the like button, and if you are new to our channel and watching the video for very first time, then please subscribe to our channel and also press the bell icon and do all, so whenever we are uploading a new video you will get the notification for that. And I do the humble request, please share this video as much as possible, okay, because we need your support. If you're sharing this video, then we will get a lot of support from the students and from the other persons also. So without your support we cannot do. So support us, keep supporting us, keep watching, and stay tuned with Kumar Academy. Thank you so much all of you for watching this long video. I know this is very this will be the around 30-40 minutes video, so it's a tough task to have a video of 30-40 minutes in your phone. So thank you so much all of you for watching my complete video. Thank you once again.